देखिए ये जो है बुक, पहले थोड़ा सा हम लोग मेट्रिक स्पेस का डेफिनेशन रिकॉल करते हैं, और मेनली एक जो टॉपिक इसमें है ना, ओपन सेट क्लोज सेट, उसको थोड़ा सा आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि अगर वो क्लियर हो गया तो मेट्रिक स्पेस फिर समझने में बड़ी आसानी होगी। ये जो टॉपिक है ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट, तो पहले थोड़ा सा मैं बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ, बेसिक आइडिया कुछ नॉन ट्रिवियल मेट्रिक स्पेसेस के। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि चैप्टर 1.3 1.4 पे एम्फेसाइज ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो मेट्रिक स्पेस में आगे दिक्कत नहीं होगी। इवन यही नहीं, जनरल टोपोलॉजी भी जब पढ़ेंगे वहां पे भी बहुत आसानी होगी। तो इसमें देखें, पहले डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ मेट्रिक स्पेसेस हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम ये पहले चार की टॉपिक समझेंगे यहाँ तक 1.4 तक, 1.3 एंड 1.4। तो जैसे कल के क्लास हमने डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हम ले लें, ठीक है ना। अब वो कलेक्शन किसी चीज का हो सकता है, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल इस पे देखेंगे। दैट कैन बी कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, दैट कैन बी कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कंटीन्यूअस फंक्शन, कैन बी कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल कैन बी कलेक्शन ऑफ सम सीरीज। सो वी विल look at all those. So this one is the definition you can see. So you can see that suppose X is a non-empty set, a real valued function D defined on their Cartesian product is said to be metric on X if it satisfies the following condition. Is this PDF visible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you can see here that the first condition is that D of xy, distance between X and Y. Here actually we are computing the if your set is, first of all we are going to use the definition of when we will say that D is a metric. So basically metric is a function. See, there is a difference between metric and metric spaces. Metric and metric spaces. Metric spaces. If you look at it, metric basically is a function, generalization of distance, and this one is a function. And once your set is equipped with the metric, this distance function, then we will call it together as metric space. But question is how we will define metric space. So this is the definition for the metric function D. So any real valued function D on the Cartesian product of X is said to be metric on X if it satisfies the following conditions. So those conditions are distance between X and Y should be greater than or equal to 0. Basically D is a mapping from X cross X to R. Or you can also consider this 0 to infinity. Okay, because distance is always going to be non-empty. So if you take this one 0 to infinity, then there is no need to write the first condition. That will be trivial because it will always take the values either 0 or greater than or equal to 0. But if you are writing codomain as R, then you have to write the first condition. Is it clear to everyone? By distance दो पॉइंट के बीच में ऑलवेज क्या होगा? नॉन निगेटिव। तो कभी कभी इस तरह भी लिख देते हैं, जैसे डी फ्रॉम कुछ बुक्स में देखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं एक्स क्रॉस एक्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर आपको कोडोमेन ये दिया हुआ है तो आप पहला कंडीशन लिखो ना लिखो वो ऑब्वियस है, तब तो सिर्फ आपको 3 कंडीशन ही देने पड़ेंगे, पहला तो ऑलरेडी क्लियर है यहाँ से। लेकिन अगर आप आर लिखते हो कोडोमेन को तो फिर आपको ये रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज कैसा है? नॉन निगेटिव। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो जैसे दो पॉइंट सेम हुए तो उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? 0। या अगर डिस्टेंस 0 है तो दो एक्स और वाई को सेम इक्वल होना जरूरी है। Third, d of distance between, whether you measure the distance between xy or distance between yx for all xy belonging to x, that will be same. This is the requirement for d to be a metric, है ना? यहाँ पे भी for all xy belonging to set है। And the fourth is triangle inequality. So third condition we will call as symmetry. ठीक है? Now you can see here that the set x together with a given metric d is called a metric space, and it is denoted by x equipped with the metric D. If there is no confusion likely to occur, we sometimes denote the metric space xd in short x. तो अगर मैं कहूं कि x is a metric space means x is equipped with some metric D, ठीक है ना? तो या तो कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं या फिर शॉर्ट में सिंपली x लिख देते हैं और ये कह दिया metric space, this means this space is equipped with a metric. Now since D is the generalization of the distance function, we interpret d of xy as the distance between two elements x and y of the set x.
So sometimes we used to call D also as distance function. ठीक है. Now the triangle unequal may be interpreted as the length of one side of a triangle cannot exceed the sum of the length of the other two sides. ठीक है, तो अब एग्जांपल्स पे आते हैं, ये सब चीजें क्लियर होगी. देखो, आप एक काम करो, पहले कुछ जनरल हम मेट्रिक लेते हैं. हाँ, ये देखो बिल्कुल ट्रिवियल. पहले स्टार्टिंग करते हैं छोटे छोटे एग्जांपल से. सपोज सेट क्या ले लिया, आर, नॉन एम्प्टी सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उस पे ये मेट्रिक डिफाइन किया. हालांकि यही आप करते हो, जो यूजुअल जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, बेसिकली यही मेट्रिक है, लेकिन अब मैं फंक्शन के फॉर्म उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, डी ऑफ एक्स वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स. सो टू कंप्यूट डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर we are going to use this metric, but before that I need to show that this D basically is a metric function. So for this D to be a metric, you need to use those conditions, prove those conditions. So first condition is that D of xy is greater than or equal to 0. So using absolute value definition, see, if you recall how you to define mod x is defined as x when x is greater than or equal to 0, and minus x when x is less than 0. So by definition absolute value function is always greater than or equal to 0, is it? देखो यहाँ x पे क्या कंडीशन, x is negative, x is less than 0, so minus into negative of negative is again going to be greater than or equal to 0. So in general, by the property of absolute value function, this first one is trivial, because mod of x minus y, absolute value of any real number is always greater than or equal to 0. So first we have proved. Second, look at the second one. Second, what we need to prove? That D of xy equal to 0 if and only if x equal to y. Now we know that when x equal to y, this mod will be 0. So second condition is also trivial. Doubt to nahi kisi ko? Now within absolute value function, either you write mod of x minus y or mod of y minus x, it will be same. So mod of x minus y, as per definition, absolute value of x minus y is D of xy, and absolute value of y minus x is D of yx. So third condition of symmetry is also satisfied. And fourth, already you know that triangle inequality satisfies this, absolute value function satisfies this triangle inequality. So you can prove that D of xy is less than or equal to D of xz plus D of zy, where z belongs to R. Xy also belongs to R. So whatever xy you choose and whatever z, in fact, you take z as arbitrary, it will always hold. Whatever z you will take, either you get equality sign or less than or equal to. So clearly this function, this D, is a metric, or this forms a metric on set of real numbers. And this is denoted as usual metric, because in our daily life usually we used to compute this metric in our daily life. So this is the reason why mathematicians used to name it as usual metric. ठीक है, तो चारों तो कोई भी अगर आपको दिया जाए तो सबसे पहले आपको अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो whether that function is a metric or not, you need to verify all those four conditions. तो एक बार फिर से देखें कि ये मेट्रिक के लिए क्या क्या कंडीशन है. पहला कंडीशन D of xy should be greater than or equal to 0 for all xy belonging to x. Second, D of xy is 0 if and only if x equal to y. Third is symmetry, and fourth is triangular equality. Fourth के प्रूफ में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि फोर्थ के प्रूफ में आपको डिफरेंट टेक्निक डिपेंडिंग ऑन मेट्रिक एंड द सेट वी नीड टू डू इट. ठीक है ना. अब यहां पे देखो, जैसे उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे आप डिफाइन कर सकते हो. कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे आप इसे प्रूफ कर सकते हो, वेयर एक्स वाई आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसको उसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन से ये भी प्रूफ हो जाएगा. थर्ड देखो, सपोज एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन फॉर एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू इट डिफाइन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 if x equal to y, and when two elements are not equal, then let us assign the distance as 1. So we need to prove that this function is basically a metric. तो कैसे प्रूफ करोगे आप बताएं. d कितने वैल्यूज ले रहा है, ये मेट्रिक कितने वैल्यूज ले रहा है, या तो 0 या 1. तो पहली कंडीशन आपको क्या प्रूफ करना है, d of xy is greater than equal to 0. greater than equal to 0. तो अब d तो दो ही वैल्यूज ले रहा है ना, या तो 0 लेगा या 1. तो वो क्या ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो पहले कंडीशन m1 तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया. अच्छा, यहाँ पे एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, जरूरी नहीं सेट ऑफ रियल नंबर्स हो.
ठीक है ना, दिस सेट कैन बी कलेक्शन ऑफ फंक्शन, दिस सेट कैन बी कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस, ऐसा कुछ लिखा नहीं है. So one can define discrete metric on any non-empty set. No, but before that, let us prove that this one is a metric. So second condition M2 is D of xy equal to 0 if and only if x of equal to xy y. is equal to d of By yx. definition. So what are the possibility we have in a set? Suppose you are choosing two element xy belonging to a set, a non-empty set. So either both will be equal or both will be different. So in case both are same, in case x is equal to y, this d of xy equal to 0 as by def, and this d of yx both will be 0. So equal. If x is not equal to y, then as per definition, if x is not equal to y, then this is also 1. This d of xy will be 1 and this will be equal to 1. Is it clear to everyone? Yes, So second sir. condition Yes, is sir. also satisfied. हाँ, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप. उसी तरह M3 को कौन सा तीसरा कंडीशन था मेट्रिक की? सो सिमेट्री तो सॉरी, एक तो वो छोड़ दिया ना, d of xy को, ये M3 बेसिकली ये था. आप M2 आ जाओ. M2 था d of xy equal to 0 If x equal to y. if and only if है यहाँ पे. It should be true both sided. I mean d of xy should be 0 whenever x is equal to y. So ऐसा नहीं हुआ कि x not equal to y तब भी d of xy 0 हो जाए. If and only if है तो दोनों साइडेड ट्रू होना चाहिए. तो ये तो बाय डेफिनेशन है, क्योंकि जब x equal to y है तो देखो यहाँ 0 है ऑलरेडी बाय डेफिनेशन. दिस वन इज m. Now fourth one is triangle inequality. M4. So for that you need to prove that d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy for every z belonging to x. In fact, you can write for every z x y z belonging to x, है ना. उससे कोई फर्क, या तो आप x y फिक्स करके z वेरी करा दो, या फॉर एवरी x y z कर दो, कोई फर्क नहीं. आप ये सबके लिए वेरीफाई कर सकते हो. तो अब देखो, अब इसमें यहाँ केसेस बना के आप देख सकते हो, एक तो वो केस बना लो जिसमें ये तीनों इक्वल हो जाए x y z. सेकेंड केस वो ले लो जहां पे x तो y के इक्वल है. x इक्वल टू y में z कुछ भी लेंगे ट्रू हो जाएगा ना. वेरी गुड. x इक्वल टू y में z कुछ भी लेंगे ट्रू हो जाएगा. बिल्कुल सही. क्यों? क्योंकि देखो, जैसे आप x इक्वल टू y ले लिया हमने, तो d ऑफ xy क्या हो गया? 0 बाय डेफिनेशन. देखो व्हेनेवर x इक्वल टू y, d ऑफ xy क्या है? 0. तो लेफ्ट साइड 0 हो गया. और ये क्या होगा भाई? आइदर वेदर z इज, if z is equal to x, then it will be again 0. If z is not equal to x, it will be 1. So if it is 0, suppose x and z are equal and z and y are also equal, then again equality will be satisfied. And if x is not equal to z, then we have 1 here. And if z is not equal to y, then again we have 1. Or if x is not equal to z, so we have 1 here, and z is not equal to y, so we have 0 here. So in all cases 0 will be less than equal to this sum. So in this way you can verify all those properties. Clear हुआ कि नहीं आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. So in this way one can verify that this is a metric d of, and this is called as discrete metric. This one is a very important metric. I will use this in discussion of open balls and open sets, and you will find maximum exceptions in metric spaces under this metric. So this is one of the important metric which I will discuss. ठीक है ना. discrete metric में exceptions बहुत मिलेंगे. तो आप याद रखो. वैसे ये कोई जरूरी नहीं मैं 1 ही असाइन करूं, या आप और भी कोई कांस्टेंट नंबर कोई असाइन कर सकते हो, बट इन जनरल वी यूज्ड टू फॉलो दिस वन. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. आप 0 2 ले लो तो सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी. So we have studied two types of metric. One is the usual metric and second one is the discrete metric. ठीक है. Second, अब यहाँ पे देखो, you can show that on each non-empty set we can always find. तो ये सब कुछ एग्जांपल है. ये R2 पे आपको ये मेट्रिक, यूजुअल मेट्रिक R2 का कल प्रीवियस लेक्चर मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे दो पॉइंट्स के बीच में, R2 के दो पॉइंट्स के बीच. ये दिस वन इज कॉल्ड एज यूजुअल मेट्रिक ऑफ R2. दिस इज कॉल्ड एज यूजुअल मेट्रिक ऑफ R2. यूजुअल मेट्रिक ऑफ R2. ठीक है ना. तो वही पाइथागोरियन यूज करके, कल ये डायग्राम पिछले क्लास में दिया था, समझाया था, पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके ये आ जाएगा.
सो दीज आर द ट्रिवियल थिंग्स, और इसका ये डिस्कशन दे रखा है। देखो पहला कैसे प्रूफ करोगे, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, तो ये तो क्लियर कट है ना। यहाँ पे जो ये सेकंड कंडीशन M1 तो ट्रिवियल है, M2 देखो, M2 कैसे प्रूव करोगे, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, so if suppose this term is equal to 0, this implies each of them has to be 0, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। this implies x1 equal to y1 and x2 equal to y2, क्योंकि स्क्वायर है, नॉन नेगेटिव है, तो कोई it has to be equal to 0 itself, I mean x1 equal to y1, so from there both slots are x1 is equal to 1 y1 and x2 is equal to y2, तो अगर ऑर्डर पेयर्स सेम हो गए, this means x is equal to y, x is equal to y, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, अब मैं इनको उसी तरह आप सिमेट्री यूज कर सकते हो कि डी ऑफ एक्स वाई को प्रूफ करना डी ऑफ वाई एक्स, तो आप स्क्वायर के अंदर चाहे x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो या y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी सेम एंड thus you will get d of y x। तो मैं जनरली मैं थोड़ा सा डिस्कशन करा दे रहा हूँ, ये आप एक बार रीडिंग कर जाए, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसे समझाने की जरूरत है। हाँ, फोर्थ थोड़ा सा ट्रायंगल इनइक्वालिटी जहां पे आए, वहां पे आप देखोगे कि कहीं कहीं मतलब आई मीन यू नीड टू प्रूव इट, यू नीड टू डू इट। जैसे ये यहां पे देखो, ये प्रूफ आप, ठीक है, आप होम असाइनमेंट ले लो और इसको कर डालो। देखो इसमें ये टर्म्स ऐड करके ये इनइक्वालिटी यूज करके किया हुआ है, ab प्लस सी डी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। तो कर लेंगे इसे, मैं इसे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, लास्ट ईयर में वाले लेक्चर मैंने डिस्कशन कराया है। जहां कुछ नया होगा वो मैं आपको हिंट करूंगा, बाकी आपको खुद से करना है, क्योंकि ऐसे एक एग्जांपल में डिस्कस करने लगूं तो जो मुझे की पॉइंट डिस्कस करना, जहां ज्यादा एम्फसाइज करना, वो मेरा स्किप हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मेट्रिक, सॉरी on R2 let us take a different metric apart from usual metric। देखो एक तो R2 पे, अच्छा मैं ये कह रहा था ना कि जैसे आप, एक क्वेश्चन ये भी है कि किसी सेट में हम कितने मेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी सेट में मान लो एक मेट्रिक दे दिया x पे d, suppose d is a metric and x is always we will assume as non-empty। तो क्वेश्चन है कि one can my claim is that one can define infinite metric on a metric on any non-empty set। one can define infinite metrics on any set। चलो एक काम करते हैं, जैसे डी मेट्रिक है, सपोज क्या डी मेट्रिक है, डी के हेल्प से मैं ये मेट्रिक डिफाइन कर रहा हूं, d1 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस d ऑफ एक्स वाई। तो अब d तो ऑलरेडी मेट्रिक आपको दिया हुआ है, d की प्रॉपर्टी यूज करके मैं d1 को दोबारा मेट्रिक क्लेम कर सकता हूं, और फिर d1 जब मेट्रिक बन गया तो d1 के हेल्प से, आई मीन d1 ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस d1 ऑफ एक्स वाई, इसके हेल्प से मैं बना सकता हूं दूसरा मेट्रिक d2 ऑफ एक्स वाई। तो इस प्रोसेस में आपको काउंटेबली देखो यहाँ पे इनफाइनाइट मेट्रिक मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ लिस्टिंग कर रखी है ना 1 2 करके, एटलीस्ट आपको इनफाइनाइट मिल जाएंगे। मतलब कोई भी अगर एक मेट्रिक दे रखा हो तो क्यों, अब देखो जैसे मान लो d ऑफ एक्स वाई, डी मेट्रिक अगर आपको दिया हुआ है तो d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल 0, 1 में कोई नॉन नेगेटिव चीज ऐड करोगे तो ओवरऑल d1 ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, ओवरऑल d1 ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि आप किसी भी सेट पे इनफाइनाइट मेट्रिक डिफाइन कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी सेट पे एक ही मेट्रिक होगा, कुछ स्टैंडर्ड मेट्रिक है जिसको हम नाम दे देते हैं और जिन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अदरवाइज वन कैन डिफाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेट्रिक ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट। उसी तरह देखो d ऑलरेडी मेट्रिक है तो d ऑफ एक्स वाई 0 होगा इफ एंड ओनली since d is a matrix, so d of x y equal to 0 if and only if x is equal to y। so this implies that d1 of x y equal to 0 if and only if x equal to y। क्यों? क्योंकि जब यहाँ न्यूमरेटर ये जब 0 होगा तो d1 अपने आप 0 हो गया, और ये कब 0 होगा, d of x y equal to 0 if x equal to y। so again from d we reaches d1। उसी तरह जब d1 0 होगा तो हम d2 पे आ जाएंगे। तो आप वो सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर।
यस सर। हो सकता है इस बुक में कहीं आगे लिखा हो, देखते हैं अभी। अच्छा देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई दूसरा मैट्रिक देखते हैं। R2 पे हमने ये मैट्रिक लिया, अब इसके मैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच पे भी आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी तो हमें प्रूफ करना है बेसिकली कि ये देखो x1 x2 और y1 y2, इसका आगे ज्योमेट्री भी दे रखा है। ये मुझे प्रूफ करना है कि दिस वे वी आर डिफाइनिंग दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक एंड x टुगेदर इज अ मैट्रिक स्पेस। तो आप प्रूफ, पहला कंडीशन आपको क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या प्रूफ कर दो कि d ऑफ x y, देखो ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये भी एब्सोल्यूट, ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, सो ओवरऑल d ऑफ x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। M2 M1 M2 M3 ऑब्वियस है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके M1 M2 M3 आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। अच्छा ये बताओ सेकंड कंडीशन कैसे प्रूव करोगे, d ऑफ x y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली if x इज इक्वल टू y। आप R2 में हो ना, तो R2 में x क्या होगा, x1 x2 टाइप का, और y क्या होगा, y1 y2। बेसिकली R2 मींस R क्रॉस R पार्टीशन पर। यस सर, तो x1 इक्वल टू y1, हाँ x2 इक्वल टू y2। हाँ वेरी गुड। तो x इक्वल टू y होने का क्या मतलब कि x1 y1 के इक्वल हो गया और x2 किसके इक्वल हो गया, y2 के। तो जैसे ही x1 y1 के इक्वल होगा ये वाली क्वांटिटी 0, और x2 जब y2 के इक्वल होगा तो ये क्वांटिटी 0। सो ओवरऑल वी आर गेटिंग d ऑफ x y इक्वल टू 0। उल्टा देखो, अगर d ऑफ x y 0 है, so equate this whole term to 0, and because these are absolute value function, this is not going to be negative, so each of them has to be separately 0। आ रही बात समझ आपको? You need to only use the property of absolute value function. So second condition is trivial. You need to claim by using the property of absolute value function. So in that way you will get if and only if। ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ये प्रूफ दे रखा है, देखो ये टर्म ऐड कर दो, ये टर्म घटा दो Z2 और आपको ये मिल जाएगा। तो टेक इट एज होम असाइनमेंट, सब कैलकुलेशन है, जहां पे कुछ आप मुझे एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो R2 पे हमने दूसरा मैट्रिक जो डिफाइन किया, कंक्लूड फाइनली करेंगे इसे क्या नाम देते हैं, लेकिन ये देखो क्या है, जैसे ये आपका x1 x2 है, ये यहाँ पे सपोज कि x1 x2 है, और यहाँ पे ये आपका y1 y2, आई मीन दिस वन इज योर y एंड दिस वन इज योर x। तो अब ये एक्चुअल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये x1 माइनस y1 क्या, देखो दोनों के एक स्लॉट का डिफरेंस, दोनों के पहले स्लॉट x1 इसका पहला स्लॉट, इसका पहला स्लॉट y1 है। एक्स एक्सिस पे दोनों ये जो क्वांटिटी ना दोनों का डिफरेंस, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मान लो यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यहाँ तक x1 आएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे ये y1 आएगा। तो ये जो इतना डिफरेंस हुआ ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ x1 माइनस y1। उसी तरह यहाँ पे जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आएगा आपका y2, और जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसका सेकंड स्लॉट क्या x2, तो ये हो गया x2। तो ये जो ये वर्टिकल डिस्टेंस ये जो होगा, ये होगा x2 माइनस y2। ये तो मान लो समझाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया, बट दिस 2 पॉइंट्स कैन बी एनीवेयर इन एनी क्वाड्रेंट, इसीलिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिया कि ये लेंथ क्या होगा। तो आपको देख रहे हो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का ये सम है बेसिकली। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये मैट्रिक क्या है, इन दोनों लेंथ का सम। जो भी दो पॉइंट है, आप एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया, फिर वाई के लॉन्ग, और दोनों डिस्टेंस का सम कर लिया। क्या ये ज्योमेट्री क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी के हेल्प से एक नया मैट्रिक डिफाइन करते हैं। इन्हीं दोनों डिस्टेंस का ना मैक्सिमम ले लो, और बाद में प्रूफ कर सकते हैं कि वो भी एक मैट्रिक है। ये सब स्टैंडर्ड मैट्रिक, इन पे अक्सर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और यह जानना है। ये जो दोनों कंपोनेंट है ना, यहाँ पे तो क्या लिखा था, x1 माइनस y1 प्लस x2, इन दोनों डिस्टेंस का सम किया था। अब आप सम करने के बजाय दोनों का मैक्सिमम ले लो। अच्छा ये क्वांटिटी देखो, मैक्सिमम आपको पीछे भी मैंने बता चुका हूं, मैक्सिमम मिनिमम सुप्रीमम आपको रियल एनालिसिस मैंने कराया था सब, सुप्रीमम इन्फीमम जब भी एग्जिस्ट करते हैं, आई मीन मैक्सिमम मिनिमम व्हेनेवर एग्जिस्ट दे विल बी मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है ना। तो और क्योंकि ये फाइनाइट क्वांटिटीज हैं, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, जब भी आप एक्स वाई लोगे तो ये सेट जो है फाइनाइट है, तो मैक्सिमम के एग्जिस्टेंस की गारंटी है, हमेशा मिलेगा। एंड मैक्सिमम मिनिमम व्हेनेवर एग्जिस्ट दे विल बी मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ये देखो कि x1 माइनस y1 क्या है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में, उनका करस्पॉन्डिंग एक फर्स्ट स्लॉट का डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये सेकंड स्लॉट का एब्सोल्यूट वैल्यू, उन दोनों में से आपको मैक्सिमम चूज करना है। जैसे मान लो ये डिस्टेंस 1 आता, ये 3 आता, यहाँ पे ये 1 हो जाता, ये 3 हो जाता, उनका मैक्सिमम कितना हो जाता, 3। ठीक है।
लेकिन अब ये प्रूफ करना, लेकिन उससे पहले ये तो इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट हुआ, लेकिन पहले ये तो प्रूफ करें ये मेट्रिक है। तो मेट्रिक प्रूफ करने के लिए इस फंक्शन को मुझे मेट्रिक के चारों कंडीशन वो दिखाना होगा। तो देखो ज्योमेट्री से दिखाया भी, इस बुक में ज्योमेट्री से दिखाया कि ये वाली डिस्टेंस थोड़ी छोटी बनाई हुई है, ये बड़ी बनाई हुई है, तो ये डार्क लाइन से दिखाया हुआ है ना, देखो ये डार्क लाइन से दिखाया हुआ है। अगर ये वाला होगा तो मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 जो होगा वो ये वाला आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये जो डार्क लाइन से इसका मैक्सिमम आ जाएगा। तो ऐसे ही मान लो अगर Rn में होंगे तो ये आप हर एक एक्स वाई, जो भी आप एक्स वाई लोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्लॉट वाइज डिफरेंस के n कंपोनेंट्स बनेंगे और उनमें से आपको क्या लेना है, मैक्सिमम। तो आप इस तरह देख सकते हो, जैसे ये R2 में था ज्योमेट्री के लिए हम R2 में ले आते हैं, लेकिन R3 R4 उसी को उससे जनरलाइज कर दिया Rn तक। तो इसे ये आप एज अ होम असाइनमेंट ले लें। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, देखो दोनों क्वांटिटी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसलिए वेरी गुड, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से ही प्रूफ होगी। हाँ, पहला ये ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रिवियल है, क्यों, क्योंकि ये भी यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी या 0 से छोटी हो नहीं सकती, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी। ये भी क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होगी, तो उसका मैक्सिमम भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो m1 हो जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। उसी तरह आप m2 कर सकते हो। m2 में क्या है, d of xy is equal to 0 if and only if x equal to y। तो पहले आप इधर से मान लो, या तो आप इसके मैक्सिमम को 0 कर दो, d of xy, सपोज करो ये जो d of xy है ना ये 0 है, सपोज करो ये 0 है, दिस मींस मैक्सिमम ऑफ दिस सेट x1 minus y1 comma x2 minus y2 is 0 is 0। तो बताओ अगर मान लो इनमें से मैक्सिमम कोई भी, मान लो ये अगर ये 0 हो गया तो दूसरा निगेटिव हो नहीं सकता, तो इस और अगर इससे हाँ ये क्वांटिटी इससे एक्सीड कर गया तो फिर 0 मैक्सिमम नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको भी 0 होना जरूरी है। तो यहाँ से आगे x1 इक्वल टू y1, यहाँ से x2 इक्वल टू y2, जब दोनों स्लॉट इक्वल हो जाएंगे, x1 y1 के इक्वल, x2 y2 के इक्वल, दिस मींस x इक्वल टू y, तो आपको ये मिल जाएगा। उसी तरह आप x इक्वल टू y एज्यूम करके चलो, x इक्वल टू y मींस x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y2, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, 0 का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 0। कर लेंगे आप लोग? यस सर। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो नाउ लेट अस कंबाइन ऑल दोस एंड जनरलाइज इट ऑन Rn। अब तक जो पढ़ा उसे जनरलाइज करो। देखो ये जो हम कर रहे थे ना, इसको जैसे मान लो एक्सपेंड करोगे Rn पे कोई भी एलिमेंट x क्या होगा, इस टाइप का होगा x1 x2 n टपल्स, बिकॉज Rn मींस r क्रॉस r कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, n कंपोनेंट है। ठीक है, x belongs to Rn means x is of type x1 x2 xn belong and y is of the type y1 y2 yn। तो एक तो हमने ये मैट्रिक पढ़ा था R2 पे, अब उसको हम जनरलाइज n पे कर देते हैं, x1 x2 xn, और आप बिल्कुल पैरेलल प्रूफ है d1 d2 में। ये जो देखो जो d1 है ना, देखो ये पहले समझो d2 आपका यूजुअल मैट्रिक है। जैसे आप अगर इसको n की वैल्यू 1 ले लो तो ये क्या आएगा, n की वैल्यू 1 लेगो तो एक ही बार ये सम चलेगा, और इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ x1 x मॉड ऑफ x माइनस y, n इक्वल टू 1 में ये आएगा, n इक्वल टू 2 में ये हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस y1 होल स्क्वायर, आप इसे एक्सपेंड करके देखो, प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये आएगा n इक्वल टू 2 के केस में। उसी तरह जनरलाइज करके आप प्रूफ कर सकते हो, Rn पे ये मैट्रिक मिलेगा और इसको देंगे हाफ, देखो पावर ऊपर हाफ ही होगा, पावर हाफ होगा, और नीचे क्या x1 माइनस y1 होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उन सब का सम, इस प्लस को यहाँ समेशन से डिनोट कर दिया, n है ना। सो दिस इज बेसिकली योर यूजुअल मैट्रिक ऑन Rn, दिस इज योर यूजुअल मैट्रिक ऑन Rn जो हम डेली लाइफ में कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इसके अलावा देखो सेम सेट पे डिफरेंट मैट्रिक बताया हुआ है यहाँ पे। एक तो ये d1 मैट्रिक है, d1 मैट्रिक क्या है, इसको अगर जैसे n इक्वल टू 1 के लिए एक्सपेंड करो, n इक्वल टू 1 रख दो, तो क्योंकि x y दो ही, n इक्वल टू 1 मींस वी आर इन R, तो R में ये तो हो जाएगा x माइनस y, लेकिन n इक्वल टू 2 लो, n इक्वल टू 2 लोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। तो ये देखो भाई, ये जो अभी ऊपर किया था ना, यहाँ जो आपने किया था, इन दोनों डिस्टेंस का जो सम किया था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों का सम, इसको मैंने Rn पे जनरलाइज कर दिया। So, and this is called as the Taxicab metric। Taxicab metric के पीछे ये कहते हैं कि शायद जो भी मैथमेटिशियन जिसने ये इन्वेंट किया था,
वो शायद इंग्लैंड का रहने वाला था। वहां जो रोड्स होते हैं ना, जो टर्न होते हैं, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरह परपेंडिकुलर होते हैं जिस पर टैक्सी रन करती है। तो वहां से कुछ इंसाइट, इसकी हिस्ट्री देखोगे तो वहां पे कुछ ऐसा है कि रोड्स परपेंडिकुलर होती थी वो इंग्लैंड में, उसके वजह से इसका नाम टैक्सी कैब मीट्रिक पड़ा। मतलब उससे हो सकता है वहां से आइडिया मिला हो या जो भी। तो मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको याद रहे, कभी कंफ्यूजन ना हो कि टैक्सी कैब मीट्रिक, इसमें इस तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम है ना, इस तरह के ये डिस्टेंस का सम। तो उसी तरह n जब होगा तो इसमें टपल्स ऐड करते चले जाओ अप टू प्लस xn माइनस yn। दिस वन इज योर डी इंफिनिटी। ये जितने कंपोनेंट है ना, इनमें प्लस हटा के इन सारे कंपोनेंट्स का जो मैक्सिमम चूज करेंगे, क्योंकि ये फाइनाइट है तो मैक्सिमम यहाँ पे आप हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, है ना, और वो इसी सेट का मेंबर भी होगा। ये आपको रियल एनालिसिस में करा चुका हूं। मैक्सिमम और सुप्रीमम में डिफरेंस में डिटेल में करा चुका हूं। सुप्रीमम इनफीमम मे नॉट बी मेंबर ऑफ द सेट। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट बोथ विल coincide, but maximum minimum whenever exist will be member of the set। ठीक है, so that is called denoted by d infinity metric। देखो पहले कोई भी चीज हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि whether that existence is justified or not। तो क्योंकि ये i equal to 1 to n है, n finite है, so maximum will always exist, maximum will always exist here। so d infinity of xy, maximum of mod of xi minus yi। उसके बाद एक ये p मेट्रिक है, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी आगे के। यहाँ पे अभी सिर्फ नाम दे रहे हैं, तो या आप डी इंफिनिटी को हम मैक्सिमम मेट्रिक कहते हैं, या इसी को यूनिफॉर्म मेट्रिक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म मेट्रिक या कुछ। अब वो बेसिकली इसमें कोई भी कन्वर्जेंस जो होता है ना, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। इसीलिए से नाम मैक्सिमम मेट्रिक भी कहते हैं, यूनिफॉर्म, या कुछ लोग इन्फिनिटी मेट्रिक भी है ना, इन्फिनिटी मेट्रिक। इन तीनों नाम में से किसी एक मैक्सिमम बुक में देखोगे, या तो इसे मैक्सिमम मेट्रिक से लिखते हैं या यूनिफॉर्म मैट्रिक से, या जब ये फंक्शंस के केस में हम देखेंगे ना, ये तो मान लो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, फंक्शन के स्पेसिस पे भी जब लाते हैं तो वहां कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होता है। जब फंक्शंस का हम कलेक्शन लेंगे और वहां पे कन्वर्जेंस चेक करेंगे। फिलहाल अभी हम इसे डी इंफिनिटी, बेहतर है आप इसे डी इंफिनिटी मैट्रिक है या मैक्सिमम मैट्रिक है, डी इंफिनिटी या मैक्सिमम मैट्रिक। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे, इसके लिए एक्चुअल में मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी यूज करके जो फोर्थ कंडीशन है वो प्रूफ होगी। ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो डीपी है ना, ये जो आप डिफाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली मैट्रिक फॉर्म करेगा फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज है। ठीक है, तो जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करना टफ है, वो उस बुक में उसका प्रूफ दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा आपको मिन्कोस्कीज 2-3 इनइक्वालिटी बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो इनइक्वालिटी बता के तब इस प्रूफ को समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आपके बुक के लास्ट पेज में अगर देखें तो वो दे रखा है। अब देखो आगे, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे एल इन्फिनिटी देखो, अब ये C1 उसी तरह जिस तरह आर पे किया ना, उसी तरह CN पे भी हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑर्डर n टपल्स, जहां हर एक एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर हो। जैसे आपने लिखा x इज इक्वल टू, ऐसे लिखे z इज इक्वल टू z1 z2 zn। Z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां हर एक एंट्रीज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके मेंबर्स इस तरह। तो वो सेम मेट्रिक D1 DP D इंफिनिटी इस पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में अगर आप याद करो तो मैंने बोला था कि कलेक्शन किसी भी चीज का ले सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो, L इंफिनिटी, ये नोटेशन ले रहे L इंफिनिटी, स्मॉल L इंफिनिटी विद द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। आपको बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में बता चुका हूं, इसलिए मैंने कहा था कि रियल एनालिसिस को में जो टर्मिनोलॉजी यूज हुए ना, वो बहुत हद तक मेट्रिक में यूज होंगे जब भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सो L infinity is collection of all sequences with what properties, that its supremum must be bounded, I mean is finite। ठीक है ना, collection of all bounded sequences। अब इस सेट का हर एक मेंबर एक सीक्वेंस है। जब मैं कहूं कि x belonging to L infinity means this member is basically a sequence, because this set is collection of sequences which are bounded। Similarly, y is a sequence। So how to compute distance between two set with respect to sup metric, with respect to supremum metric। तो अभी तो पहले हम उससे पहले तो ये कंप्यूट करेंगे कि ये सुप्रीमम मेट्रिक जो है, बेसिकली दिस सुप्रीमम फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ मेट्रिक। पहले तो आपको ये प्रूफ करना है, और जब प्रूफ हो जाए, और साथ में क्या कंडीशन है,
स्पेस पे कि इसके जो भी सीक्वेंसेस होंगे उसके आप हर एक, जैसे मान लो ये सीक्वेंस है x इक्वल टू हमने लिखा x1 x2 ये चल रहा है, तो हम इन हर एक का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना। देखो ये n कहाँ रन कर रहा है 1 to infinity। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस सीक्वेंस को आप उठा रहे हो उसके हर एक एंट्रीज का एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालोगे, हर एक एंट्रीज का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, और हर एक एंट्री का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। तो वैसे ही सीक्वेंस है जिसके मेंबर होंगे, जैसे मान ले कि क्वेश्चन इज वेदर x इज इक्वल टू -1 to the power n belongs to L infinity or not। क्या ये सीक्वेंस L infinity का मेंबर है -1 to the power n? तो अब आप लिखो इसके मेंबर्स को लिखो। फॉर n इक्वल टू 1 इसकी पहली एंट्री क्या होगी -1, फिर 1, फिर -1 1 एंड सो ऑन। अब ये हर एक एंट्री देखो, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइनाइट है, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइनाइट है, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइनाइट है, क्योंकि आप सभी का पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है और उस पर सुप्रीमम लगा हुआ है। और सुप्रीमम कब मिलता था याद है? सुप्रीमम की बात कब कहते थे? जब वो बाउंडेड हो। तो इसके हर एक की एब्सोल्यूट वैल्यू बाउंडेड है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। सो दिस वन इज अ मेंबर ऑफ द L infinity, दिस वन इज अ मेंबर ऑफ L infinity। तो अभी तक तो आप क्या पढ़ गए? अभी आप सब कुछ आपने R, R2 और R3 पे देखा। अब हम डिफरेंट स्पेसेस लेंगे, उस पे कुछ स्टैंडर्ड मेट्रिक होता है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड मेट्रिक कहलाता है इस स्पेस का। हालांकि इस स्पेस पे आप और भी मेट्रिक डिफाइन कर सकते हो, but just like in R, R2, R3 we have usual metric, so this you can call as a standard metric on the space of all bounded sequences। तो डिटेल प्रूफ मैं इसका भी बाद के क्लास में करूंगा, यहां मैं एक आइडिया दे रहा हूं किस तरह हम कंप्यूट करेंगे। और जब जैसे ये मेट्रिक हो गया तो ये आपको क्या गारंटी देगा कि आप इस स्पेस के हर दो एलिमेंट के बीच में क्या कंप्यूट कर सकते हैं, डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच मेट्रिक? सुप्रीमम मेट्रिक। Then it is easy to verify that D infinity is a metric on L infinity। अगेन यहाँ पे ना ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लेके सुप्रीमम है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके प्रूफ हम करेंगे कि दिस वन इज अगेन दिस D infinity is going to form a metric on this set L infinity। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ऐसे सीक्वेंसेस का कलेक्शन है जो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब देखो यहाँ पे भी एक डिफरेंस है, क्यों यहाँ सुप मेट्रिक लिया और यहाँ पे सिर्फ सिंपली हमने स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस लिया है ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ रियल। तो यहाँ पे क्यों इस तरह लिया गया? अच्छा, आपकी अगली क्लास तो नहीं है आप लोगों की? नो सर। नो सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक हिंट दे दूं ताकि थोड़ा सा आप एक बार रीडिंग करके आएंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल प्रूफ कराऊंगा, डिस्कशन कराऊंगा। और किसी भी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग से पहले उसका जो की आइडिया है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में अगर आप याद करें तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, हालांकि वहां पे मैंने अभी एग्जांपल जो दिया तो R, R2, R3 पे दिया क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास थी, लेकिन मैंने साथ में ये बोला था कि कलेक्शन हम किसी भी चीज का ले सकते हैं। जैसे सीक्वेंसेस का कलेक्शन है, सीक्वेंसेस में भी बाउंडेड सीक्वेंसेस का कलेक्शन है, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का कलेक्शन है। हालांकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड, बट बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, ऑलरेडी हमने किया था। या सीक्वेंस ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पे हम ये मेट्रिक डिफाइन कर रहे हैं। तो ये मेट्रिक क्यों डिफाइन किया और वेदर दिस वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डिफाइंड और नॉट, एंड हाउ टू प्रूव दैट दिस इज गोइंग टू बी अ मेट्रिक, एक एक करके हम ये प्रूव करेंगे। ठीक है ना? तो इस बुक में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं जो देखो, इसीलिए मैंने कहा ना कि हर एक बुक की कुछ अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो कम से कम 2-3 किताबें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और ये सब ऐसे स्पेसेस हैं जो यहाँ भी आप पढ़ोगे, अभी एमएससी में भी आप जब जाओगे वहां पे भी फंक्शनल एनालिसिस वगैरह पढ़ोगे, तो इसलिए इन स्पेसेस को डिटेल्ड स्टडी जरूरी है। तो इन सब में देखो फोर्थ जो है ना, इन सब में एक मिन्कोस्की इनइक्वालिटी यूज हो रही है। उसी तरह भी मैं आगे बता दूं, यहाँ पे देखो सेट ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस का कलेक्शन लेके उस पर कोई मेट्रिक हम डिफाइन करेंगे, ये मेट्रिक, ये उसका स्टैंडर्ड मेट्रिक कहलाता है, ये प्रूफ करेंगे क्यों। ये भी अब उस पर भी आप जैसे स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ले लिया तो उस पर एक हम मैक्सिमम मेट्रिक भी ले लिया और एक इंटीग्रल मेट्रिक, इन दोनों को प्रूफ करेंगे कि बेसिकली दिस बोथ फंक्शंस आर गोइंग टू बी मेट्रिक। तो यहाँ पे जो कलेक्शन लिया वो स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, इससे पहले जो हमने लिया स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस है। तो बाउंडेड जैसी हो गया उसमें सुप्रीमम की बात कर सकते हैं, अगर आप याद करो तो आपको पीछे मैं बता चुका हूं। इसीलिए कहता हूं कि रियल एनालिसिस वगैरह पढ़ना जानना जरूरी है इन सब चीजों के लिए। तो ये एक एक करके हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे, फिर उसके बाद स्यूडोमेट्री का कॉन्सेप्ट है और कुछ स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज
मैं डिस्कस कर दूंगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये कलेक्शन स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया, क्या प्रॉपर्टी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड सुप्रीमम वेल डिफाइंड होगा। अब प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन जो है ये बेसिकली मेट्रिक भी है, मेट्रिक है इस सेट पे। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी, डिफरेंट डिफरेंट आपको मेट्रिक स्पेस, कुछ स्टैंडर्ड हमें क्या लेने हैं सेट्स, उन पे कुछ स्टैंडर्ड मेट्रिक होगी। हालांकि एक मेट्रिक दे रखा तो आप उससे इनफाइनाइट मेट्रिक डिफाइन कर सकते हो, वो भी मैंने की पॉइंट आपको बता दिया। लेकिन उससे पहले इसको वेरीफाई करना कि मेट्रिक है इस सेट पे। Once it is a metric, it will act as a tool to compute distance between every two member of this convergent sequence, space of convergent sequence. ऐसे कुछ स्टैंडर्ड केस आपको की आइडिया समझने के लिए जानना जरूरी है। और ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि whether these are metric or not on this set। तो आपको पढ़ के और इन सब में पार्टिसिपेट करना है, और प्रॉपर चारों रीजन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रीजन से डिस्कार्ड कर दिया, कौन कौन से रीजन फेल हो रहे हैं वो सब आपको देखना है। ठीक है, तो हम दोनों देखेंगे, जहां जहां ज्योमेट्रिकल R2 R3 में तो आप ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है। क्लास में रेगुलर रहे आप लोग, क्योंकि मैं अटेंडेंस भी नोट करूंगा। क्लास में मुझे डिस्कशन इन्वॉल्व होने के साथ साथ जो डिस्कशन में इन्वॉल्व होगा मैं उसकी मार्किंग भी नोट करता जा रहा हूँ रजिस्टर में, क्योंकि टीचिंग ऐसे नहीं होती कि रिकॉर्डेड लेक्चर। पहले 2 सेमेस्टर में देखिए अलग बात थी, अब सॉरी वहाँ अलग थी कि बहुत से ऑनलाइन लेक्चर्स, और उस वक्त कोविड वाला जो पेंडेमिक का सिचुएशन था तो रिलैक्सेशन थी। लेकिन धीमे धीमे, क्योंकि ना फिर क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगी ना कहीं बोरिंग। जब आप एक प्रेशर रहेगा और आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे ना तो आप खुद ही पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोचें सिर्फ नोट्स मिल गया और मैं खुद से पढ़ लूंगा, कोई नहीं पढ़ता, मैंने सबका देखा है। ठीक है, सब कहने की बातें होती है, इवन यूट्यूब पे लेक्चर्स भी अवेलेबल, तब भी बहुत जिसको इंटरेस्ट होगी, हार्डली क्लास में 60 की क्लास है तो 2-4 बच्चे होते हैं जो सीख लेते हैं खुद से। लेकिन अगर आप क्लास में डिस्कशन करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीमे धीमे आप देखो, ये जो जितने भी कंपटीशन होते हैं ना, जैसे आप IIT जैम वगैरह है, मालूम है कितना भी आपको लेक्चर दे दिया जाए, आप कोचिंग करो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होगे ना तो 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिस्कशन के थ्रू आपको लीड करा देगा कंपटीशन में। रैंक टॉप 100 में रैंक सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर टॉप 100 टॉप 50 में रैंक चाहिए, जो आपके डिपार्टमेंट में पुराना रिकॉर्ड है, कई बार बच्चा है 16 रैंक से लेके कितने अच्छे अच्छे रैंक तक पुराने रिकॉर्ड्स रहे, अगर पिछले 1-2 साल छोड़ दिए जाए ये पेंडेमिक वाले, तो हमेशा रहा है डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बच्चे बहुत ज्यादा कोचिंग करते थे, अब करते थे, डिस्कशन में इन्वॉल्व होते थे, क्वेश्चंस लगाते थे, डिस्कस करते थे, और वही एक्स्ट्रा कितना भी कोई कोचिंग कर ले, अगर आप डिस्कशन में इन्वॉल्व है ना तो वो बहुत कुछ हद तक रटी रटाई चीजें भी होती है। लेकिन जो क्लास में अगर आप रेगुलर है तो कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको कंपटीशन में लीड देगा, और वही आपका डिटरमिनिंग होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि डिस्कशन में आप इन्वॉल्व रहें। अच्छा, लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे एक शॉर्ट आइडिया दूंगा और सवालों पे इस पर ज्यादा मैं फोकस करूंगा, और आपको भी पढ़ के आए, उधर से भी आप क्वेश्चंस करें, उसमें डिस्कशन 2 साइडेड डिस्कशन होगा। ठीक है, क्लियर हुई चीजें आप लोगों को? आप खुद ही कुछ देखोगे ना, कुछ वक्त बाद आपको खुद सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, वरना आप मेट्रिक स्पेस को हमेशा टफ ही समझते रहोगे। मैंने पहले भी कहा कि मेट्रिक स्पेस समझने के लिए आपको 11th-12th की कैलकुलस आनी चाहिए और 9th-10th की थोड़ी सी ज्योमेट्री और सेट्स का नोटेशन, क्योंकि नोटेशन इसमें ऐसे है कि अगर आप नोटेशन पे ध्यान नहीं दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और स्टार्टिंग के लेक्चर में स्पेशली ओपन सेट, क्लोज सेट का डेफिनेशन, और ये ओपन बॉल्स और क्लोज्ड बॉल्स, इन पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना। डिफरेंट अभी स्पेसेस लेके, डिफरेंट मेट्रिक लेके हम बॉल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, उन बॉल्स के हेल्प से ओपन बॉल के हेल्प से ओपन सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अगर ये सही समझ लिया तो बाद के लेक्चर्स में कंटिन्यूटी, कॉम्पैक्टनेस करेंगे, इन सब में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वरना वहां पे फिर आपको जैसे ही मेट्रिक चेंज करेंगे, सेट चेंज करेंगे, आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, मैं लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ, और कल संडे है, कल छुट्टी है, कल आप लोग जरा रिवाइज करके फिर मंडे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर वो डिस्कशन का क्या हुआ था सर? क्वेश्चंस क्या डिस्कशन? सर जैम के लिए क्वेश्चंस डिस्कशन सर। देखता हूँ, असल में प्रॉब्लम देखता हूँ, कुछ टाइम आप लोग 2 हफ्ते में 1-2 दिन कुछ मैं प्रॉब्लम्स डिस्कशन करा दूं, क्योंकि अल्टीमेट फायदा तो उसी से होगा ना, प्रॉब्लम डिस्कशन से। थ्योरेटिकल वो तो कवर में करा दूंगा, तो कम से कम हफ्ते में कुछ या अल्टरनेट, या ऐसा कर दें कि मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको ग्रुप में डाल दूं, आप सॉल्व करो,
और फिर उस पर फाइनल एक डिस्कशन करा दूं, 5 क्वेश्चन रोज का ऐसे दे दूं अल्टरनेट। ओके सर, यस यस सर, सर, ऐसे कर देंगे। मतलब आपके पास दिन भर टाइम रहेगा, आप उसे देखो, सोचो उस पे, और फिर उसके बाद जी सर, एक हाफ एन आवर का 1 घंटे का मैं क्लास लेके अल्टरनेट डे डिस्कस करा दूं, क्योंकि उसमें आपकी लर्निंग ज्यादा होगी। अच्छा होता क्या है ना, जब सवाल आप सॉल्व करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाते हैं, सबसे अच्छा ये होता है। और जैसे जहां पे आपके सवाल गलत हुए वो टॉपिक निकाल के आपने बुक या अपने नोट से दोबारा रिवाइज कर लिया, ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी गलतियों को ओवरकम करने का। यस सर, कितनी भी तैयारी कर लो, जैसे सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज में जो सवाल गलत हुए इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कुछ मिस्टेक है या आपकी बहुत अच्छी उस पर प्रैक्टिस नहीं है, तो उन टॉपिक को दोबारा निकालो, यही होता है कंपटीशन में लीड करने का तरीका। बाकी आप नोट्स का कलेक्शन, बुक्स का कलेक्शन लेके या यूट्यूब वीडियोस का कलेक्शन, इससे कभी आपकी रैंक नहीं इंप्रूव होगी, लिख लो ये बातें। और आप ये खुद विजुलाइज करोगे, क्योंकि अगर आपके लिए टफ और आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं तो जो मेहनत नहीं कर उसके लिए ज्यादा टफ होने वाला है। क्लास में परसेंटेज पाना और वहां पे एग्जाम में हो सकता है 55% पाना, लड़का बहुत अच्छा रैंक लिया है। कंपटीशन बहुत अलग है, ये किसने कितना सोचा है, कितना मेहनत की है, ये मैटर करता है। यस सर, और आईटीजेएम का सही से देखा जाए तो आपका जो डिपार्टमेंट सिलेबस इतना अच्छा कि 1 महीना सफिशिएंट है तैयारी के लिए। अगर आप थोड़ा सा पहले से देखते हैं और क्लासेस रेगुलर की है तो 1 मंथ पहला काम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर डालो आप। ठीक है, देखता हूं मैं कुछ ग्रुप में क्वेश्चन डालूंगा, आप लोग रेगुलर रहें। ओके सर, ओके सर। सर रोल नंबर 60 सर, अटेंडेंस लगा दीजिए। रोल नंबर 60। 19 MMB। यस सर। सर ठीक है, 18 MMB 30 सर। एक सर 19 MMB 47. एक मिनट। बाकी लोग लीव कर दे जिनका हो गया। 18 MMB 30। ओके सर। एक एक Yes, करके sir, 18 19 में पहले बोले, 19 MMB में बताएं। 19 MMB 60। 19 MMB 47. 19 MMB 47। सर 18 MMB 03030। 18 MMB 03 सर 18 MMB 030 40. सर 330 18 ब्रजेश MMB कुमार वर्मा। यस सर। सर 18 MMB 40. 18 MMB 40 मोहम्मद नदीम खान। हाँ, और 19 में और कोई रह गया था ना? सर 60 सर, 19 MMB 60। 19 MMB 60। हाँ, मोहम्मद आकिब। हाँ, हो गया, ठीक, ओके।